Okay, so simply how it will create the signal. Please see very carefully. You have to understand that is AMI technique we are using here. AMI technique using here with scrambling. With scrambling, that means 8 consecutive zero वो नहीं रहने देगा. This is called scrambling. This technique is called scrambling. So 8 consecutive zero will be replaced by this VB, and with that AMI technique we are using. With that AMI technique we are using. Very carefully you have to understand. Here is the technique. See 8 consecutive zero it have. See 8 consecutive zero it have. AMI techniques. Please see AMI techniques. VB it will replace. VB. AMI techniques क्या बोलता है? First, if this is positive, two cases of this, ये कंसेक्यूटिवली 000 इसी स्लॉट में जाता. कंसेक्यूटिवली ये AMI टेक्निक्स में क्या था? 1 पे पॉजिटिव, 0 पे 0, पूरा 0 होते रहेगा. दिस इज AMI टेक्निक्स. यही था. तो यहाँ पे 0 कंसेक्यूटिवली 0 यहाँ पे होना था. बट ये स्क्रैम्बलिंग क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा बिट V और B इट विल ऐड. And V or B इसका काम क्या है? Simply, if this is positive, previous level is positive, then it starts with positive. B will be positive, B will be negative. Next time V will be negative because previous one is negative, and B will be positive. So it will replace by this signal. Consecutive zero यहाँ पे नहीं रहने दिया. That is the concept tells by scrambling. Is the thing clear? Is the thing clear? यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव से ही स्टार्ट करना है. यहाँ नेगेटिव है, बी द केस, सी द केस. ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव से ही स्टार्ट करना है. सिंपली V will be negative first, then B will be positive, then V will be positive, then B will be negative. So that is the technique is called B8ZS. B8ZS, that is a scrambling technique. First scrambling technique. So scrambling का मतलब समझ में आया? What is scrambling समझ में आया? Yes, no. Consecutive zero को ये रिप्लेस करेगा. Consecutive zero अगर है इसको रिप्लेस करेगा. इसका एक कोडिंग तुम्हारा प्रैक्टिकल में भी करना है. That means इस पर्टिकुलर टेक्निक का कोडिंग तुम्हें प्रैक्टिकल में दिखाना है. फर्स्ट यू हैव टू ऐड VB and then you have to again remove on VB. So that is have a practical scrambling technique for CSE, for CSE student. It is a practical task. See इसका प्रोग्रामिंग तुम्हें करना है. You have to add in a sequence VB and then after that again that you have to remove it. So that consecutive zero को ये खत्म करेगा. Is the thing clear? Is the thing clear, everyone? This thing is clear? Scrambling is clear? Yes, no? तुम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो एक्टिवली. सर बोलो. सर ये जो बी जो आप ऐड कर रहे हैं इसका मतलब कि उसका इक्विवेलेंट जो एस की होता होगा वो ऐड होगा ना? वो ऐड होगा. क्योंकि वी राइट. It is a special character. Yes, this is a special character. तो उसका सर तो इतना लंबा हो जाएगा हम लोग का थी सिग्नल जो है मतलब स्पेशल कैरेक्टर. दिस हैव ए पर्टिकुलर एसक्यू. सो जीरो का भी एसक्यू वैल्यू है. तुम्हें जीरो का मतलब जीरो नहीं है यार. तुम कंप्यूटर. हाँ समझ गए. जीरो का भी एसक्यू वैल्यू 48 होगा उसका. हाँ तो सर वैसे ही वी का जो होगा. हाँ तुमको सिग्नल के हिसाब से, डेटा के हिसाब से ट्रीट करना है. इट इज नॉट ए कि तुम्हारा जो सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. जब डेटा कन्वर्ट होगा या जो भी ये डेटा है ये तुम
काम कर रहे हो कहां पे, ये तुम काम कर रहे हो फिजिकल में, फिजिकल लेयर में। बी केयरफुल, ये काम हो रहा है फिजिकल लेयर में, दिस इज नॉट योर एप्लीकेशन लेयर। दैट मीन्स एप्लीकेशन लेयर से ऑलरेडी कन्वर्ट होके बाइनरी में कन्वर्ट होके जो भी वैल्यू है वो कन्वर्ट होके उसने चला गया है, ऑलरेडी वहां पे पहुंच गया है। दिस v and b have a special character, that means it is a special character and it only takes single bit to store, it only takes single bit to store, that is a representation of this b or b is representation of your in your stream, but b or b simply you have to understand, यहाँ पे b और b का मीनिंग तुम जो कॉपी एंड पेन एंड पेपर में लिख रहे हो और जो फिजिकल लेयर में v और b का मीनिंग होगा वो डिफरेंट है। तुम यहाँ पे b तुम्हारा x की वैल्यू के तरह ट्रीट तुम कर सकते हो, बट जब फिजिकल लेयर में ये एक्चुअली होगा दैट इज ए सिंगल बिट पैटर्न, दैट इज ए सिंगल बिट पैटर्न। सिग्नल मतलब सर 1 0 1 1 नो सी वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट विल जब ये जनरेट होगा, वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब ये सिग्नल जनरेट होगा एट दैट टाइम ये इस हिसाब से सिग्नल को वो चेंज कर देगा, सिग्नल चेंज करेगा एंड उसका रिप्रेजेंटेशन है ये। we are not adding anything, please be careful, understand, we are not adding anything in data में ये 0 0 0 0 0 0 0 ही है, but when it creates the signal ये देख रहा है कंटिन्यूएशन में ये 0 0 0 0 में ही जा रहा है, तो जब whenever it creates the signal it will convert the signal like this, एंड इस जो ये जो कन्वर्ट हो जा रहा है इसका रिप्रेजेंटेशन है v और b। यस सर, समझ गया सर। यस सर। This technique actually it is not adding any data, very carefully you have to understand, actually ये physical layer में है, actually it is converting the data to signal। 0 0 0 0 ऑलरेडी एप्लीकेशन लेयर से ये पहुंच चुका है, दैट मींस एप्लीकेशन लेयर में मेन डेटा था मेरा, वो डेटा कन्वर्ट होके बाइनरी में कन्वर्ट होके दैट बाइनरी वी हैव, बाइनरी ऑलरेडी तो मेरे पास बन के आ गया है। अब ये जब सिग्नल क्रिएट कर रहा है, देख रहा है अरे बाबा कंडक्टिविटी 0 हो रहा है, ओके मेक इट दिस, ये जो बनाया है सिग्नल इसको तो रिप्रेजेंट करना है ना किसी तरह, तुमको कॉपी में रिप्रेजेंट करना होगा ना, वो कॉपी में रिप्रेजेंट करने का टाइप में मैं ऐड कर रहा हूं v और b, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिग्नल, क्लियर? ठीक है सर। सर ऐसा एक्चुअल हम लोग का डाटा हुआ जो जैसा कि मान के चलिए ए नंबर जो फिगर है, ऐसा ही डाटा हम लोग सेंड किए हैं, मतलब एक्चुअल डाटा हम लोग का वैसा एक्चुअल डेटा यही है, बट अगर मान के चलिए सर मतलब कि कंसेक्यूटिव 0 के कारण हम लोग का डाटा ऐसा नहीं हुआ है, हम लोग का जो एक्चुअल डाटा है ना वही ऐसा है, तो वो जो रिसीवर साइड में है वो कैसे समझेगा कि कंसेक्यूटिव 0 के कारण हुआ था या फिर एक्चुअल डाटा ऐसा था? ये तो रिसीवर एंड में सिंपली अच्छे से समझ में आया, रिसीवर एंड में जैसे ही ये देखेगा कि यहाँ पे एक्चुअल जब देखेगा 0 के लिए सिंपली वो देख रहा है कि ये रिसीवर एंड में ये इस तरह सिग्नल पहुंच रहा है, ठीक है, तो रिसीवर एंड में इसको ये दैट इज द थिंग कि मैं बोल रहा हूँ ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल पर्टिकुलर वैल्यू इसके जगह रिप्लेस करेगा, एक स्पेशल कैरेक्टर उसकी जगह रिप्लेस करेगा कि हाँ ये मेरा स्क्रैम्बलिंग की वजह से हुआ है, दिस इज ए स्क्रैम्बलिंग डेटा, दैट इज ए कंट्रोल थिंग, मतलब कोई दूसरा वोल्टेज लेवल होगा, हाँ दूसरा वोल्टेज लेवल बना के भेजेगा एंड ताकि उनको समझ में आए कि हाँ ये दिस इज फॉर स्क्रैम्बलिंग। समझ गया सर, ठीक है सर। दूसरा वोल्टेज लेवल भी हो सकता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी का भी हो सकता है, या दूसरा फेज का भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स, क्लियर? स्क्रैम्बलिंग एक दूसरा चीज बना के भेजेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है ये v and b, इज द थिंग क्लियर?
not Yes, sir. only always application level, not always this is amplitude. Okay, so that is the thing. ये B8ZS तुम्हें दे रहा है, और यहाँ पे नेक्स्ट HDB3 हैज अनदर सब्स्टिट्यूशन. ये क्या करेगा, ये 4 बिट पे काम करेगा. दिस इज नॉट 8 बिट. इससे पहले वाला 8 कंसेक्यूटिव 0 पे काम कर रहा था, बट यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव 0 बिट पे काम करेगा. अब यहाँ पे देखो ये HDB4 कैसे ये काम कर रहा है स्क्रैम्बलिंग, कि कंसेक्यूटिव 0 4 अगर है, इट विल ऐड दिस 000B or B00V depending on number of non-zero pulses. Depending on non-zero pulses, if this is even or odd, so simply let's do it. See here is the 4 consecutive 0. Now it will check इससे पहले कि नॉन जीरो लेवल कितना था, 2. Non-zero level is 2. Then it is even non-zero level. Count the non-zero level. 2 even. So it will make B like this. It will create like this signal. But agar this is odd, number of non-zero level, let's say 1, number of non-zero level is odd here. When it starts, it will see only that particular position. If this is odd, so it will create like this signal. Again यहाँ पे एक भी नहीं है, that means 0. Even, this will create like this. So if even, it will create V00B, B00B, and if this is odd, it will create 000B. This is HDB3 scrambling technique. Is the thing clear? Is the thing clear? Is the thing clear? बोलो हाँ या ना. So this technique is called scrambling. Okay. Now the last point, what you have to discuss, that is analog to digital conversion. अभी तक जो भी हम लोग समझे हैं वो है digital to digital conversion. So till that digital to digital, that means we have digital data, we have to convert it into the digital signal. Now we have digital analog signal, we have to convert it into digital data. Very carefully you have to understand what we are going to start. That is analog to digital conversion. That means we have analog signal with me. Now we are trying to get digital data ताकि digital signal बना पाए. We need digital data for creating digital signal. Yes, it is. We need digital data, जो कि previous हम लोग सीखे हैं कि digital data मेरे पास है अवेलेबल, मैं डिजिटल कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा हूं. नाउ वी हैव analog signal that we are trying to convert it into the digital data. And अगर digital data तुम्हें मिल गया है तो obvious बात है कि digital signal भी मुझे मिल जाएगा, because I have this techniques already we have gone through. So digital, so ये signal इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए इसका नाम है analog to digital conversion. Now we are going to start this. There are two basic methods. One is pulse code modulation, PCM, and the second is delta modulation. So PCM and delta modulation ये तुम लोग शायद जानते हो, but still communication में शायद पढ़ चुके हो, delta pulse code modulation and delta modulation. But still I'll just repeat that and very gist में repeat करूँगा, not एकदम details में मैं जाऊँगा, but still see very carefully you have to understand what we are going to start now. That is analog to digital conversion. That means analog signal we are trying to convert it into digital data. And if I got this digital data,
वी हैव लाइन कोडिंग एंड ब्लॉक कोडिंग टेक्निक ताकि हमको डिजिटल सिग्नल बना पाए. So basically analog signal to digital signal you have to convert. So analog signal will convert it into the analog signal, digital signal, if I got this digital data. So that is the technique we are trying to get the analog signal to digital data. So pulse code modulation, data modulation, these are two techniques for what we are going to study. So PCM and data modulation. See, PCM, pulse code modulation, have three techniques, basically three steps. One is sampling, second is quantization, third is binary encoding. So these three techniques PCM have to convert this. PCM have sampling, quantization and binary encoding. That three things actually PCM have. Sampling means, what sampling? Sampling means sampling, word say to me samajh mein aa raha. What is sampling? Sampling means just collection of samples. Collection of amplitude throughout the signal. जब एक एनालॉग सिग्नल है कंटिन्यूएशन में जा रहा है, आफ्टर टाइम स्लॉट्स वी हैव टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ आफ्टर सम टाइम स्लॉट, सम फिक्स टाइम स्लॉट. मान लेते हैं कि 5 मिलीसेकंड, 5 मिलीसेकंड के बाद मैं सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेक करूंगा. हर 5 मिलीसेकंड में मैं एक बार एम्पलीट्यूड चेक करूंगा. व्हाट इज द वैल्यू? दैट इज दैट ये जो सैंपल कलेक्शन हो रहा है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड सैंपलिंग. एंड क्वांटाइजेशन, व्हाट क्वांटाइजेशन विल डू? Quantization means we have to convert this particular amplitude को मुझे कुछ कोड में कन्वर्ट करना होगा. That is quantization. We have to convert this amplitude to some code according to my algorithm. You have to make it some code, and after that that code is converted into the binary. That is the three techniques: sampling, quantization and binary encoding. So these three things actually we have to perform in PCM, pulse code modulation. So this thing very carefully you have to understand. So here is the technique. First analog signal we have, picturize it. Analog signal we have. Analog signal के बाद I have these three things. After sampling we got the amplitude of some specific time slot कि एक this time पे क्या इसका amplitude था, उसके बाद फिर क्या amplitude था, फिर क्या amplitude था, फिर क्या amplitude था. I got after sampling this amplitude I have calculated after sampling. This is called PAM signal. And after that quantizing, you have to code it. Some code you have to do. ये जो amplitude मुझे मिला इसको सम कोड तुम्हें चाहिए, कोडिंग इट. तो यहाँ पे कुछ कोड जनरेट किया गया उससे. दिस इज क्वांटाइजिंग. आफ्टर दैट दिस कोड, जो कोड मुझे मिला, दैट कोड इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी. दैट वी गॉट, दैट इज कॉल्ड इन एनकोडिंग, एंड देन वी गॉट डिजिटल डेटा. इफ आई गॉट दिस डिजिटल डेटा, देन डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन इज नॉट a task, because you already studied this line coding techniques and block coding techniques. So we are trying to convert a analog signal to digital data. Analog signal to digital data. That concept is called PCM. PCM have pulse code modulation is a technique for that. This conversion, analog to digital conversion technique. Two techniques actually we are going to study. One is pulse code modulation, another is delta modulation. We are now inside the pulse code modulation. Pulse code modulation have these three things: sampling, quantizing and encoding. Is the thing clear to you? Next how we will do that? ये जो प्रोसेस है उसको मैं गॉन थ्रू कर रहा हूँ, कैसे ये प्रोसेस जा रहा है. बहुत इंटरेस्टिंग है ये. तो सैम्पलिंग मीन्स मैंने क्या बोला था, हमेशा एक पर्टिकुलर सेकेंड के बाद मैं उसका सैंपल कलेक्ट करूंगा, उसका एम्पलीट्यूड कलेक्ट करूंगा. नाउ इट हैव अगेन three sampling methods: ideal, natural and flat top. Ideal, natural and flat top. What is that techniques? Please see, you're going to understand that.
just collect the value, just collect the value. This is ideal sampling. पर्टिकुलर कोई एक टाइम स्लॉट दो, फिक्स टाइम स्लॉट, उस टाइम स्लॉट में उसका क्या वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है, कलेक्ट कर लो। इसका क्या 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 एम्पलीट्यूड है, उस पर्टिकुलर टाइम में क्या एम्पलीट्यूड में वो है, उसका कलेक्ट कर लो आफ्टर सम टाइम स्लॉट। दिस इज आइडियल सैंपलिंग। व्हाट न्यूट्रल टाइम सैंपलिंग विल डू, ये जो शुरू है एक टाइम स्लॉट के बीच में, एक टाइम स्लॉट के बीच में क्या, देखो यहां से यहां तक ये जो टाइम स्लॉट है, इस टाइम स्लॉट के बीच में कौन कौन सा एम्पलीट्यूड था उसको कलेक्ट करके एवरेज कर दो। दैट बिकम्स ए नेचुरल सैंपलिंग। नेचुरल सैंपलिंग दैट मींस यहां पे हर पार्ट में एम्पलीट्यूड नापना है, थोड़ा हार्ड टास्क है ये। हर पार्ट में सैंपलिंग नापना है और क्या क्या हर पार्ट में तुम्हें एक उसका क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड नापना है, और एम्पलीट्यूड का एवरेज जो बीच में होगा दैट इट विल टेक। यहां पे भी इस टाइम स्लॉट के बीच में तुम्हें एवरेज ऑफ दैट एम्पलीट्यूड, इस टाइम स्लॉट के बीच में, ये जो टाइम स्लॉट है, टाइम स्लॉट के बीच में उसका एवरेज नाप लेना है, उसका एवरेज ले लेना। दैट इज नेचुरल सैंपलिंग। दिस इज नेचुरल सैंपलिंग। हर एक टाइम स्लॉट्स में तुमको नेचुरल उसका एम्पलीट्यूड का एवरेज लेना है। दिस इज नेचुरल सैंपलिंग। एंड व्हाट फ्लैट टॉप सैंपलिंग टेल्स, फ्लैट टॉप सैंपलिंग मींस इस टाइम स्लॉट के बीच में तुम्हें टॉप को फ्लैट करके एम्पलीट्यूड नापना है। टॉप को यहां पे देखो मैं एवरेज एम्पलीट्यूड नहीं नाप रहा हूं, इसी टाइम स्लॉट में उसका एरर यहां पे ज्यादा है, सिंपली एरर यहां पे ज्यादा है। यहाँ पे टॉप को मैं ये नहीं मान रहा हूं कि यहां से यहां तक के बीच तक ये डिग्रेड हुआ था, मैं मान रहा हूं वही सैंपलिंग था, वही उसका पर्टिकुलर ये था। तो इस पर्टिकुलर बीच में उसका सैंपल यहां हो जाएगा। टाइम स्लॉट में ये थोड़ा सा एवरेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा इससे, और कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरेज यहां होना चाहिए था ओरिजिनली, बट यू कलेक्ट हियर। इस टाइम स्लॉट के बीच में अगर टॉप को फ्लैट करके नाप लें, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लैट को टॉप को फ्लैट करके अगर मैं यहाँ पे नाप लूं टाइम स्लॉट के बीच में, तो यहाँ अगर एवरेज नापूंगा तो यहाँ बीच में इसका एवरेज होगा क्या, यहाँ पे यही उसका एवरेज हो जाएगा, बट होना चाहिए था क्या यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एरर ज्यादा है, बट एज ऑन एवरेज ठीक ठाक ही हो जाए, क्योंकि कुछ जगह मैंने ज्यादा लिया था, कुछ जगह मैंने कम लिया है, कुछ जगह मैंने ज्यादा लिया। इफ इट इज डिक्रीजिंग देन थोड़ा सा ज्यादा होगा, इफ दिस इज इंक्रीजिंग देन थोड़ा सा कम होगा। सो ऑन एन एवरेज द सिग्नल हैव nearly exact amplitude, so that is called flat top sampling, flat top sampling. So normally हम लोग आइडियल सैंपलिंग ही करते हैं। सो आइडियल सैंपलिंग मींस जस्ट एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में उसका क्या सिंपली उसका एम्पलीट्यूड को नाप लिया, दैट इज सिंपल आइडियल सैंपलिंग। इज द थिंग क्लियर? There are three methods for this sampling. Is the thing clear for this sampling method? बोलो हाँ ना, क्लियर है? आगे बढ़े? Okay. So now we are moving towards the quantization. So sampling we got. Now quantization is a very tough task. Quantization means sampling result. बेसिकली बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, एक पर्टिकुलर अगर सैंपल को मैं नाप के चल रहा हूं, उस पर्टिकुलर रेंज में मैक्सिमम, देखो सिंपली इनफाइनाइट टाइम सैंपलिंग हो सकता है। अगर मान लो 1 to 2 सेकेंड के बीच में अगर मैं सैंपलिंग नापते चलूं, तो इनफाइनाइट टाइम सैंपलिंग यू कैन ड्रॉ। So which one is the perfect one? So उस तरह मैं उसका डेटा जो होगा उसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर नहीं सकते।
सो दैट्स द थिंग, एग्जैक्ट वो नहीं हो पाएगा, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कोड इट। तो कैसे मैं करूंगा कि उस पर्टिकुलर जो एम्पलीट्यूड का जोन है, पर्टिकुलर हर एक एम्पलीट्यूड का जो जोन होगा उसको मैं एक एक नंबर से कोड देते रहूंगा। लेट्स सी द एग्जांपल देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखो, उसके बाद ये समझेंगे। सी हियर दिस जोन, अगर मान लो ये एम्पलीट्यूड मैंने लिया है, इसका एम्पलीट्यूड है, सिंपली एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ पे -6.1, 7.5, 16.2, 19.7, 11.0, -5.5, these are the actual value of sampling we have. Now ये जो टोटल यहाँ उसका टॉप में गया है, ये इधर इसका टॉप यहाँ गया है, so that what is maximum? So ये जो मैक्सिमम जो 19.7 है, इस मैक्सिमम को मैं हायर मान के टोटल यहाँ से, टोटल इस रेंज से लोअर उतना ही दूर जाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 20 तक मान के चलता हूँ, 20 तक मान के चलता हूँ, इधर भी 20 तक तुम्हें एक जोन क्रिएट करना होगा। दैट इज द थिंग, हियर इट इज क्रिएटिंग द जोन। So that is here it is given. So assigning codes to zones. So please, quantization zones. Assume that we have voltage level signal amplitude minimum -20 volt and maximum +20 volt. ये कौन सा वाला +20 -20 कैसे आया? By seeing the highest one. नेगेटिव में भी हाईएस्ट हो सकता है, पॉजिटिव में भी हाईएस्ट हो सकता है। By seeing the highest one, you assume the voltage levels zone. That means ये दोनों मिलके ये जो -20 to +20, ये दोनों के बीच में जितना वोल्टेज हुआ, that voltage is divided some zones. अब यहाँ पे L equals to 8 लेके यहाँ पे ये पिछले वाला में ये लिख दिया है, the midpoint of each zone is assigned to the value of this value. इससे पहले वाला चलते हो, हाँ ये पे This is achieved by dividing the distance between mid and max. Mid और max ये दोनों का बीच में कितना जोन में तुम डिवाइड करोगे, that is taken as height. That means जो मिनिमम माइनस मैक्सिमम, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिखाया कि -20 is the minimum and maximum +20, ये दोनों के बीच में जो टाइम है इसको 8 जोन में डिवाइड किया गया, 8। सो डेफिनेटली क्या होगा, सो 8 जोन में यहाँ पे देखो, दैट इज द जोन लेंथ। 8 जोन में L जोन्स, L इज द जोन नंबर। सो हियर इसके बाद ये क्वांटाइजेशन लेवल में मैं बाद में आ रहा हूं, बट हियर फर्स्ट वी वांट टू यूज L इक्वल्स टू 8 क्वांटाइजिंग लेवल। नाउ जोन लेंथ, जोन विड्थ क्या होगा, डेफिनेटली -20 to -20 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 5। That means each zone, हर एक जोन का लेंथ कितना होगा, विड्थ क्या होगा, 5 5 5 5 5 5, तब जाके ये -20 to +20 में दिखाएगा। So that means अब उस 8 जोन का से सी, so this 8 zones are -20 to -15 एक जोन, -15 to -10 सेकेंड जोन, -10 to -5 थर्ड जोन, -5 to 0 फोर्थ जोन, 0 to +5 fifth zone, 6th zone, 7th zone, 8th zone. So that is the zones. And what is the midpoint? Simply these are the midpoint of that zone. So इस जोन का midpoint को पहले कैलकुलेट करना होगा, हर एक जोन का midpoint को कैलकुलेट करना होगा। Now can you see here? So here simply एक जोन, यहाँ पे एक जोन, ये एक जोन है, ये एक जोन है। So it is colored yellow, एक जोन, this one, this blue, I think this is lime color, lime is एक जोन, फिर ब्लू, फिर लाइम, फिर ब्लू, सॉरी फिर येलो, फिर लाइम, फिर येलो, फिर लाइम, फिर येलो, फिर लाइम। दीज आर द जोन्स। हर एक के बीच में 5-5 का लेंथ है। टोटल -20 और 4+20 के बीच में टोटल 8 जोन्स में मैंने यहाँ डिवाइड किया है। दैट इज द सिंपल थिंग। उसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट क्या है, -20 to -15 का मिड पॉइंट -17.5।
So that minus 17.5 is given some code that is 0. This is 0, this is 1, this is 2, this is midpoint. Midpoint is chosen by some number, some code. It is code, quantization code. Quantization code मैंने दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that is divided into some codes. And after assigning the codes, very carefully you have to understand, after assigning the codes हम ये चेक करेंगे ये कौन सा कोड में पढ़ रहा है. 6.1 that is here. क्वांटाइजेशन कोड क्या है? 2 0 1 0 1 0 1. This seventh जोन था 1 0 1 1 1 1. That I got the binary. Is that thing clear? And what this normalized is PAM value, and that is error. What is error? Error कैसे चेक किया जाएगा? Please simply see minus 6.1 divided by 5, because ये जोन में, ये जोन कितना का है? 5 लेंथ का है. तो minus 6.1 divided by 5. What is that? देखो करके देखो. Minus 6.1 divided by 5. What is the value? Minus 1.22. So that is actually the PAM value. हर एक वैल्यू को 7.5 divided by 5 1.0, this 1.3.24, this, and what is the quantized normalized quantized value? That is this midpoint. जो midpoint था वो उसका हमेशा एवरेज. ये दोनों का एवरेज क्या होगा? यहाँ पे अगर जो भी जोन होगा, इस जोन में अगर कोई एम्पलीट्यूड है, उसका एवरेज क्या होगा? Midpoint. So midpoint is the normalized PAM value. So here is the normalized PAM value. So here you can see इसका क्या है? minus 7.5, midpoint minus 7.5. That minus 7.5 divided by 5 क्या है? देखो minus 1.5. यहाँ पे देखो ये 7.5 ही midpoint है. So 1.50 ही उसका normalized value. इसका देखो, इसका midpoint कौन सा है? इसका midpoint 17.5 है. So 17.5 divided by 5, that is 3.5. Simple. This is normalized value and this is actual value. अब ये दोनों के डिफरेंस करेंगे तो that is your error. That is your error. जो कि हम एरर क्रिएट हो रहा है, that is इतना का एरर क्रिएट हो रहा है. जब तुम सिग्नल बना रहे हो इतना एरर हो रहा है हमेशा. इतना एरर हमेशा हो रहा है. So that is called error. Is the thing clear to you? Is the thing clear to you? बोलोगे? Yes sir. This is PAM. This is PAM. So here we can go through this particular lines. इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख दिया है, लिख के मैंने समझाया है. So यहाँ पे इसको पढ़ के पूरा समझ में आ जाएगा. Why? This is the thing. Midpoint of each zone is assigned to the value 0 to L minus 1. Everything is written. जो कि मैं वहाँ पे बोल दिया. मिड पॉइंट को 0.0 टू L minus 1. L क्या है? 8 है. तो 0 to 7 के बीच में ये एक नंबर को असाइन मैंने कर दिया. तो सिंपली अब उसको अप्रोक्सीमेट, ये मिड पॉइंट से अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट किया गया. उस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करने के बाद वी गॉट दिस पर्टिकुलर कोड. सो हियर दीज आर द 8 जोन्स. अब जैसे ही ये जोन, जिस जोन में वो होगा, इस जोन में अगर है तो 0 0 0, इस जोन में अगर है तो 0 0 1. That is your code. So that is the simple technique of PAM. This is so here is the signal level. Here is the signal level, and signal level को, ये जो signal level था उसको मैंने एक बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर दिया. That is 0 0 0 1 0 1 1 1, sorry 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1. अगर इसको मैं मर्ज कर दूं, that becomes a binary data. Simple. This technique is called PCM, pulse code modulation. Now next, so quantization error already I have discussed. Quantization error already I have discussed. This is error. This is the error. ये होना चाहिए था एक्चुअली 1.5 को ही, ये 1.5 को ही मैंने यहाँ पे कोड दिया था, बट 6.1 को भी ये कोड मान के ही मैं चल रहा हूँ. सो दैट इज द एरर. सिंपल. जो मिड पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया था, जो मिड पॉइंट है उसको ये कोड दिया गया था 2.
सो ऑब्वियस बात है मिड पॉइंट से थोड़ा सा कम है, फिर भी मैं इस चीज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली देयर आर सम एरर्स, सो दैट एरर इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन एरर एंड दैट इज टेक्निक ऑफ pulse code modulation. Now we are moving towards the delta modulation. So delta modulation very easy. This is very easy again. Delta modulation means if it is increasing, take 1. If it is decreasing, take 0. So here it is. Here it is. That is coded. That thing is coded. टोटल जो एम्पलीट्यूड जहां जहां जा रहा है उसको मैं यहाँ पे एक बॉक्स एक कोड जनरेट किया है. एंड हेयर यू कैन सी इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर ऑलवेज नीचे से ही स्टार्ट करना है. नाउ इट इज इंक्रीजिंग 1, again it is increasing, it is start always 0, start should be always 0, start should be always 0. Now it is increasing 1, it is increasing 1, it is also 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 increasing 1. Now it stands decreasing amplitude, decreasing 0, decreasing again 0, decreasing 0, decreasing 0, decreasing 0. Now again here it also decreasing 0, now it is increasing again. This is 1 1. So that is generated by the binary data. So इतना pulse code modulation का पूरा इतना जो भी quantization and all these things is the logic. If हर एक पॉइंट पे मैं चेक करते चलूंगा उसका एम्पलीट्यूड, इफ इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम प्रीवियस इट इज 0, sorry 1, if it is decreasing from the previous it becomes 0. That's the simple technique the delta modulation takes, and by this we can got this particular binary. Now this thing is okay with you. We have finished today's class. Is the thing clear to you everyone? Thing is clear to you, this modulation technique, delta modulation and pulse code modulation? If not, then again you go to the video. मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, उसके बाद तुम्हें नहीं समझ में आता है तो तुम फिर से बोलोगे मुझे. Is that thing clear? PCM and delta modulation? We have finished the class. Okay, thank you.